Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good and doing well. So it is the last video of our class 6 geography chapter number 3, motions of the earth. So today we are going to discuss the NCERT exercises, and after this the chapter is over. So let us don't waste the time and start our video. आपको ये पूरे चैप्टर मेरे चैनल पे मिल जाएगा, एक ही वीडियो में नहीं है, अलग अलग वीडियोज़ में पूरी प्लेलिस्ट है. So if you wanna read this chapter or understand this chapter, you could go through the playlist. So our first question, that answer the following questions briefly. A, what is the angle of inclination of the Earth's axis with the orbital plane? It is 66.5 degree. आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया हुआ था. ये हमारी ऑर्बिटल प्लेन होती थी, ये हमारी एक्सिस होती थी और इसके साथ कितना एंगल बनाती थी? 66.5 डिग्री एंगल. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. सो व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस is known as rotation. The movement of earth on its axis is known as rotation. And what is revolution? The movement of earth around the sun in a fixed path or orbit is known as revolution. Now question number C, what is a leap year? So a year consisting of 366 days is called as leap year. Differentiate between summer and winter solstice. इसको आप ना अच्छे से अपनी नोटबुक पे राइट कीजिएगा लाइक दिस. यहाँ पर समर सॉलिस्टिस डाल लीजिएगा एंड यहाँ पर विंटर सॉलिस्टिस. बस फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पर ऐसे लिखिएगा. आपको ऐसे ना लर्न करने में भी आसानी होगी. समर सॉलिस्टिस किस दिन आता है? सो समर सॉलिस्टिस ऑकर ऑन 21st जून. एंड विंटर सॉलिस्टिस कब आता है? विंटर सॉलिस्टिस ऑकर ऑन 22nd दिसंबर. समर सॉलिस्टिस में होता क्या है? डेज डे, क्योंकि एक दिन का होता है ना. डे इज लॉन्गर देन नाइट. क्यों? क्योंकि इस टाइम पर वो मैं थर्ड पॉइंट भी बन सकता है, वहां पर थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे. ये सेकंड पॉइंट हमारा विंटर सॉलिस्टिस का, नाइट इज लॉन्गर देन डे. नाइट इज लॉन्गर देन डे. नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, इन समर सॉलिस्टिस में क्या होता है? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर it is, there is summer season. In summer solstice northern hemisphere experience summer season. And यहाँ पर पूरे लिख लीजिएगा. in northern hemisphere experience summer season and southern hemisphere experiences winter season. और winter solstice में लिखिएगा northern hemisphere experience winter season and southern hemisphere experiences summer season. लैंग्वेज आप अपनी भी ऐड कर सकते हैं, ये तो मेन पॉइंट्स है, मैंने बता दिए. 3 पॉइंट्स सफिशिएंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? सो आपकी बुक में यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है. ऑन 21st March एंड 23rd September डायरेक्ट सनरेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर. एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स. दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स. आप इसको पूरा लिख सकते हैं और इसमें थोड़ा बहुत वर्ड आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. मेरे ख्याल से पूरा सफिशिएंट होगा, पूरा लिखना चाहिए आपको. Why does southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than the northern hemisphere? Because
At the time of winter solstice, summer solstice, the north pole is tilted towards the sun and the south pole is away from the sun. That's why the direct sunrays falls on the northern hemisphere or north pole or tropic of Cancer. That is why the northern hemisphere experiences summer season, and the then the all conditions are reversed in the southern hemisphere. That's why the southern hemisphere experiences winter season. आपको आप सेम इसी तरीके से विंटर सॉलिस्टिस का भी लिख देंगे क्या? During winter solstice, the south pole is tilted towards the sun and the north pole is away from the sun. That is why the direct sun rays fall over the southern hemisphere, southern pole. So at that time, at the time of winter solstice, there is which season? There is summer in southern hemisphere and winter in northern hemisphere. Question number G. Why do poles experience about 6 month day and 6 months night? Because the at the time of कौन सा क्वेश्चन है? Why do poles experience about 6 months days and 6 months night? इसको पहले आप लोग समझ लीजिए. ये हमारी सन है, हमारी ये अर्थ है और ये हमारा सन है. जो हमारे पोल्स होते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया. सन से डायरेक्ट सनरेज इस टाइम पे यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ सदर्न पोल तक नहीं पहुँच पा रही है, जिस वजह से ये पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा यानी कि नॉर्थ पोल वाले पार्ट में हमारे 6 मंथ्स कंटिन्यूस सनरेज फॉल होती हैं. इस वजह से यहाँ पर 6 मंथ डे होता है और यहाँ पर नहीं फॉल होती है, इस वजह से यहाँ पर 6 मंथ नाइट होती है. और फिर जब हमारा विंटर सॉल्स्टिस आता है, इस टाइम पे क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है. यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती है पूरे अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर वाला एरिया यानी कि सदर्न पोल पर, और यहाँ पे नॉर्दर्न पोल पर नहीं पड़ रही होती सनरेज, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिस वजह से यहाँ पर सदर्न पोल पे पूरे टाइम पर डे होते हैं, 6 मंथ डे होते हैं और यहाँ पर 6 मंथ नाइट होता है. ठीक है, आप लोग समझ गए, सब अपने वर्ड्स पे राइट कर लीजिएगा. और यहाँ पर आपकी बुक में भी रिटर्न है, आप यहाँ पर से भी लिख सकते हैं. बुक को मैं ढूंढ के बता रही हूँ. हाँ, फर्स्ट वाले पैराग्राफ पेज नंबर 20 पर ही है. The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle. Places beyond, कौन सी place होगी beyond the Arctic Circle? It's the North Pole. Experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the. बस आपको उतना ही काम का है और सेम चीज़ यहीं लिख दीजिएगा. और बाद में क्या होता है, ये चीज़ नॉर्दर्न पोल सदर्न पोल के साथ होती है, इस वजह से बाद में सदर्न पोल पर 6 मंथ कंटिन्यूस डे लाइट पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर दिन होता है कंटिन्यूस 6 मंथ के लिए और यहाँ पर नाइट होती है नॉर्दर्न पोल में. Now take the correct answers. The movement of Earth around the Sun is known as revolution. Second option. B. Direct sun rays of the Sun fall on the equator on. Direct sun rays of the Sun fall on equator on 21st March. 21st जून को तो समर सॉलिस्टिस होता है और 22nd दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस. Christmas is celebrated in summer in Australia because Australia lies in the southern hemisphere, and at the time of winter solstice in Australia there is summer. Cycle of season is caused due to revolution. रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, रिवोल्यूशन की वजह से हमारा क्या होता है, सीजन चेंज होता है. A leap year has dash number of days. How many days? 366 days. The daily motion of the earth is daily motion. Daily motion की वजह से होता है डे और नाइट. डे और नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से. The earth travels around the sun in dash orbit. ऑर्बिट का शेप क्या होता है? एलिप्टिकल. और अब फिक्स्ड ऑर्बिट. फिक्स्ड भी यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर एलिप्टिकल भी हो सकते हैं. इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट या इन एलिप्टिकल ऑर्बिट दोनों हो सकता है. फिक्स्ड भी आंसर राइट है और एलिप्टिकल भी राइट है.
The sun's rays fall vertically in the tropic of dash on 21st June. 21st जून यानी समर सॉलिस्टिस है ना, और सारे डेज हम लोगों ने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग लिए हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे 21st जून को गर्मी पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे क्या आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन, किस सीजन में होते हैं, दिन ठंडियों में छोटे होते हैं और रातें ठंडियों में बड़ी होती हैं, या रात ठंडियों में गर्मियों में छोटी होती है और रातें ठंडियों में लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं गर्मियों में, दिन गर्मियों में लंबे होते हैं। एक और बात सुनो, रातें जो होती हैं वो ठंडी में लंबी होती हैं और गर्मियों में छोटी होती हैं, दिन जो होते हैं वो ठंडियों में छोटे होते हैं और गर्मियों में लंबे होते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे, और आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप लाइट भी जा चुकी है, सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो and your NCERT exercises are also over. From the next video we will start our new chapter. Till then, stay tuned, stay connected. Bye bye.